Assalamu alaikum. Dear students, this is your class for instrumentation and measurement for 27th of January and Wednesday. So this is going to be a recorded class, as it's obvious. Now we are just on the chapter number 9. लास्ट हमने जो किया था वो था वाले लूप और मुरे लूप टेस्ट. इसके बाद का ये लेक्चर है, आई गेस यही है. लास्ट टॉपिक वही था, एज फार एज आई रिमेम्बर. सो ये हमें इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस मेजरमेंट की कुछ ब्रिजेस पढ़ने हैं इन चैप्टर नंबर 10. ब्रिजेस जो हमने पढ़े थे लास्ट थे वो व्हीट स्टोन ब्रिज था. अब व्हीट स्टोन ब्रिज इज जस्ट फॉर फाइंडिंग आउट द अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द 3 नोन रेजिस्टेंसेस, जिसमें से एक हम वेरिएबल रख लेते हैं. So that we already have covered. But if we want to find out the unknown inductance or capacitance, then there are number of bridges available, the various configurations. So हमें उस capacitance और inductance को deal करना है in our next lecture. So for the groundwork of the capacitance and inductance हम आज ये lecture देख रहे हैं, and this is chapter number 9. So RC and RL equivalent circuits. सो इसका व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया. द बेसिक आइडिया इज़, ये मैं इस टॉपिक पे इंशाल्लाह अभी दोबारा से आता हूँ और मैं आई जस्ट स्क्रॉलिंग इट जस्ट टू शो यू दिस फिगर कि इफ़ यू हैव अ सर्किट लाइक दिस कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर इन पैरेलल. तो ये एक सर्किट हो सकता है कि कैपेसिटर के साथ आप रेजिस्टर में पैरेलल में लगाएं, ये हो सकता है. But in itself, the capacitor is also the real capacitor is just like this: a capacitor and a parallel resistance. It means if we are just considering a simple capacitor, even then the real world behavior of the capacitor will be modeled using a parallel resistance with the capacitor, because this capacitor is going to be ideal, and if the things are ideal, basically there is just can't be anything ideal in this world. सो ये कैपेसिटर भी आइडियल नहीं हो सकता. देयर मस्ट बी some method of modeling. Hold on, hold on. I have to take this call. It's very urgent call. स्टूडेंट्स, आई एम रियली वेरी सॉरी. बीच में इंटरप्ट करते हैं. आप इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके क्लास को कंटिन्यू कर लीजिएगा. द थिंग इज के दिस जस्ट कांट, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ पॉज हियर. सो रिकॉर्डिंग में हम इसको या तो बंद कर दें. चले, मैं और ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते. आई जस्ट पुट दिस phone in aeroplane mode. Now there just can't be any messages or anything. I'm really sorry for it. So that was a very urgent call. Acha. So I must see that mic is working or not. Okay. ठीक है. अच्छा. ये जूम मीटिंग में, ये मीटिंग में मैंने एक और बात देखी कि if your mic is mute and you are speaking, so it gives you a very prominent indication. That's very good. Otherwise I have recorded a lecture speaking for the whole 1 hour, and then my mic was muted और स्टूडेंट्स भी वहाँ पर. तो सारा लेक्चर जाना, आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा मेरे साथ. एनीवे, सो ये मैं इस टॉपिक पे बाद में आता हूँ. लेकिन एक आइडियल कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए. That means that if you have charged a capacitor for some voltages, up to some voltages, it should remain there forever. अब दुनिया में कोई चीज़ फॉरएवर तो होती नहीं है. दुनिया खुद से अपनी फॉरएवर नहीं है. तो इसके ऊपर चार्ज भी डेफिनेटली नहीं रहेगा. और वो चार्ज कहाँ जाएगा? इफ़ यू हैव जस्ट ओपन सर्किटेड इट दिस कैपेसिटर एंड यू हैव जस्ट केप्ट इट इन आइसोलेशन, तो ये चार्ज कहाँ जाएगा इसके ऊपर से? The thing is that there is a intrinsic
internal resistance through the dielectric, the insulating material. Any insulating material is just not a perfect insulator. Definitely there is some leakage current. No matter how small is this, that is in the microamperes or the picoamperes or the nanoamperes or even lesser than this, then even then there is a leakage. Over a period of a long time, that leakage will just drain out all the charge which was just there on the capacitor in its start initially. तो कोई आइडियल कैपेसिटर को भी हम ऐसे कर सकते हैं, नॉन रियल वर्ल्ड कैपेसिटर को भी इस तरह मॉडल कर सकते हैं, और इट कैन बी जस्ट अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सेपरेट रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटर. So in that case, this resistance can have any value. Otherwise, for a real just capacitor, this resistance value should be very high. अच्छा, अब ये जो आइडिया है वो ये है कि दिस नेटवर्क कैन बी जस्ट रिप्लेस्ड विद दिस सेम नेटवर्क, और दिस सीरीज नेटवर्क, और हम इसको टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन सेम. तो वो कौन सी वैल्यू ऑफ सी एस होनी चाहिए और कौन सी वैल्यू ऑफ आर एस होनी चाहिए, सो दैट दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल गिव्स द एग्जैक्टली सेम रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल सर्किट, सेम रिस्पॉन्स. तो हमें ये इसका इक्विवेलेंट मालूम करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड द पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट, that is parallel RC and then series RC circuit. And for doing this, we need to have some kind of basic knowledge, और वो बेसिक नॉलेज मैंने किताब के स्कैनिंग के बाद यहाँ पे अपने हैंड राइटिंग में सारी एक्यूमुलेट की जमा की हुई है, बेसिक नॉलेज ऑफ द कैपेसिटर्स. एंड देन दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स इंडक्टर्स, तो इंडक्टर्स की भी नॉलेज मैंने थोड़ी सी जमा की हुई है. This information I have taken from the book of Alexander and Sadiku. That was a electrical circuits book in your previous semester. So आप लोगों को ये चीज़ें पहले से कवर अप की हुई होंगी. Maybe it's too basic for you, but even then a review is always a good thing. So if there is a resistor and you just pass a current of maximum current IM and then cosine value, AC वैल्यू की बात हो रही है. सो ये फेजर्स का टॉपिक मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इधर, और आई विल जस्ट फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड इंडक्टर हियर. तो फेज डिफरेंस का भी इसका में कुछ आएगा. सो इफ यू जस्ट टेक व्हाट इज गोइंग टू बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, डेफिनेटली आई मल्टीप्लाई बाय आर, द ओम्स लॉ. So where I is given by this, so I have just written this Im cos omega t plus the phase difference phi. So ये जो होगा I is replaced with this I. So it can be just written as a phasor, because phasor में हम क्या करते हैं, अगर कोई phasor हो x, यहाँ पे मैंने phasor का concept यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है. As a review, if there is a x and it is making an angle of phi with the real axis, so it can be just written as x, the magnitude means the length, and the angle. Although this also involves cos omega t, but for writing a phasor we just eliminate this cos information and omega t information. The frequency information is just eliminated, and just the only the phase relationship is just written in the phasor. What we expect here, what we assume here, कि अगर हम फेजर में डील कर रहे हैं तो द ओवरऑल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द होल सिस्टम, एवरीथिंग इन द सिस्टम will be the constant, will be a constant. So that's why we just eliminate it and we just exclude it from our discussion. We just assume that it is constant in phasor domain. तो हम जब यहाँ पे इसको कांस्टेंट समझ लेते हैं तो ये इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं फेजर डोमेन के अंदर. तो ये इसका मतलब है कि कोई भी अगर सिस्टम कहीं पर चल रहा है तो नॉर्मली द फ्रीक्वेंसी इज अ कांस्टेंट. अगर कोई कैपेसिटर है, कोई एम्पलीफायर है, कोई कुछ है, कोई सर्किटरी है, कोई नेटवर्क है, तो द फ्रीक्वेंसी नॉर्मली रिमेन्स सेम. अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है and the system is working on different frequencies, then definitely you cannot work with phasors there, because the frequency is not constant. Phasor just does not have any basics or any concept of handling two signals of working at a different frequency. So phasor में अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो I already have emphasized appropriately to a certain level के यहाँ पे phasors में frequency constant होते हैं. तो there is this इसको हम साइनर कहते हैं normally, and this signer is just rotating. And what is the frequency of the rotation? The rotation frequency is omega, in radians omega, but if you just talk in frequency, the hertz, so it will be 2 pi f. Omega is equal to 2 pi f.
तो ये किस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे घूम कर है इसके ऊपर, ये जो है एफ की फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। और रेडियंस में मालूम करें तो रेडियंस का मतलब है कि 2 पाई एक साइकिल के 2 पाई, तो 2 साइकिल के लिए 2 पाई 2, मतलब ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उतने 2 पाई, एक एक सर्कल में रेडियंस में हम कहते हैं 2 पाई। So if I just replace with this its phasor, so this becomes Im angle phi, और इसको मैंने इसको बोल्ड में लिख दिया है। तो दिस इज जस्ट लाइक सेम फेजर डोमेन के अंदर द रेजिस्टेंस इज जस्ट फॉलोइंग द ओम्स लॉ. So this was just for a time domain where v was just a small and the quantity v is equal to this cos involved था, लेकिन here this v has been just replaced with its equivalent of equivalent phasor, voltage का phasor, where the voltage was where the this is the phasor, और ये जो है ये जो ओरिजिनल आई है इट हैज बीन रिप्लेस्ड विथ इट्स आई फेजर, तो वी इज इक्वल टू आई आर, सिंपल। इसमें कोई कोई खास साइंस नहीं है, इसमें बहुत आसान चीज़ें हैं। जो अगली चीज़ चलनी है बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। दस द वोल्टेज रिलेशनशिप फॉर रेजिस्टर इन अ फेजर डोमेन कंटिन्यूज टू बी ओम्स लॉ। चलिए कोई बड़ी बात नहीं थी, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि फेजर में ये वाला अगर कॉस ओमेगा टी फाई है तो फेज जो होता है वो आ जाता है यहाँ पर, और द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आता है इसका, जो साइन वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ऊपर में पॉजिटिव में या नेगेटिव में, पॉजिटिव वाला लिखते हैं तो ये एक्स आ जाता है। तो ये एक्स को यहाँ पे हम शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लेंथ। अच्छा, ये मैक्सिमम भी हो सकता है, ये आरएमएस भी हो सकता है, दैट जस्ट डिपेंड्स। डिफरेंट बुक्स different books take different approaches. Either they just say that this is RMS value or they say just, लेकिन जो भी होगा वो कंसिस्टेंट होगा, सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस का आप इसको पीक लेते हैं या इसको आरएमएस लेते हैं। Having said this about the register, just for making the ground for the further discussion, now we just are on the capacitors. So let capacitor is just connected, and the voltage across this capacitor is voltage across this capacitor is V. So what is going to be the I? I is V is this. The maximum voltages and the cos. The function is cos in the phase difference of the existing the voltage phi है। तो अगर कोई सिग्नल हो उसको मैं एक जनरलाइज करने के लिए फाई डाल दिया, अगर जनरलाइज करने के लिए इसको फाई नहीं डालेंगे तो वो सही है, ठीक है, नहीं होगा फाई, दैट मीन्स दैट दिस फाई इज जीरो। तो जनरलाइज केस के लिए हमने कह दिया कि कोई ना कोई इसका फेज है, और दिस इज जस्ट फॉर द जनरल सेक, दिस फाई विल जस्ट रिमेन विल अपीयर एज इट इज, इट विल हैव नो डिफरेंस। अगर जीरो डाल देंगे तो ये गायब हो जाएगा, अदरवाइज किसी भी जगह पे आप इसको जीरो कर सकते हैं आगे फर्दर डिस्कशन में भी। So what is going to be the I from this capacitor? Definitely I is given by C dV by dt. So that becomes C d of derivative of Vm. यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया just for the writing, and derivative of dt. So when we just went for actually derivating this term of Vm cos omega t plus phi, तो हमें पता है कि the derivative of cos is minus sign. So this minus, this omega comes out here. Vm is as it is here. This is as it is. And then C was already here. C dV by dt. I is given by C dV by dt. So C was there, C was here. And then eventually C is also appearing in this statement. So this becomes sine omega t plus phi. But we know that minus sign can be replaced with cos of the main argument a plus the phase. So plus the phase of 90. So this sine a, simple sine a can be replaced with cos plus 90, cos of a plus 90. So this is just two things are just equivalent. Minus sine is equal to cos 90, cos plus 90, cos of a plus 90. Right. So in that way, we can just replace this thing with the omega for here. C comes here. Vm comes here. All these things remain same, but minus sign has been just replaced with minus. Just minus sign is replaced with minus sign cos of this omega t plus phi and then plus 90. So in that way, we can just have this phasor domain when there is 90 as coming as a phasor. So
or we can just say that this is a phasor. Vm cos, the original voltages which were just we had applied across the capacitor, और फिर हमने करंट निकाला था, तो इसका इसका फेजर कितना था, इसका फेजर क्या था, Vm cos phi। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ये ओमेगा टी तो नहीं होता ना यहाँ पे फेजर में, तो ओमेगा नहीं थी, फाई फाई था सिर्फ ओमेगा। द फेजर वाज Vm cos ऑफ फाई, बट यहाँ पर जो है ये बन गया Vm, ओमेगा टी तो आएगा नहीं फेजर में, प्लस फाई जो कि ऊपर था 90, लेकिन 90 ऐड हो गया है, तो 90 को हमने एज ए जे की सूरत में बाहर निकाल लिया, जे की सूरत में बाहर निकाल लिया। जब भी अगर फेज का डिफरेंस हो 90 प्लस 90, इट कम्स इन पॉजिटिव जे, और अगर माइनस 90 हो तो इट कम्स इन एज माइनस जे, यानी अपॉन में आता है। तो वी बिकम्स इज इक्वल टू आई हियर डिवाइड बाय जे ओमेगा सी। तो ये बात हो गई। तो हम यहाँ पे ओम्स लॉ लिख सकते हैं इन टर्म्स। अच्छा, अब मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, आई जस्ट शो यू लिंक हियर इन योर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। I already have given you a link here. This is the link, or I have just said that this is a must watch. So this link is available on your WhatsApp group. You just click it and just see how this all these minus plus 90 is just coming in as a J outside. तो ये अगर आप पढ़ना है तो what is the main concept here? The main concept is Euler's identity. I have just written this Euler's identity here. तो वो लेक्चर तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यूलर्स आइडेंटिटी समझा देगा, बट इन यूलर्स आइडेंटिटी इफ इट इज J90 एक्सपोनेंशियल J90, so you know what is Euler's identity? Euler's identity is J theta. Here I already have written 90, but if you just compare, make it a general case, E J theta, then that becomes cos theta plus J sin theta. But here I have just written as 90. That means cos of 90 is 0 and sin of 90 is 1, so it becomes just J. So E J90 is just J. That is iota. अच्छा, ये यूलर्स आइडेंटिटी से मैंने आपको क्या चीज़ एम्फसाइज की है, मैंने ये आपको बताया है कि दिस प्लस 90 जस्ट कैन बी टेकन आउट एज J मल्टीप्लाइड विद द फेजर। अच्छा, तो ये जो वीडियो मैंने आपको बताई है अभी, जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको लिंक दिया है, दैट इज जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। तो अगर आप लोगों को ऑलरेडी नहीं आता, आपने फेजर वैसे किया हुआ है लास्ट कुछ, लेकिन रिव्यू करना हो तो अगर आपको मैंने एक वीडियो लिंक दे दिया है, सो दिस बिकम्स दिस। अच्छा, फॉर इंडक्टर भी हमने इसी अप्रोच को अप्लाई किया है, बट हियर उधर हमने लिया था V, और यहाँ पे हम ले रहे हैं कि I इज थ्रू द इंडक्टर इज दिस। तो फिर यहाँ से हमने कहा कि इसका वोल्टेज होगा LdI/dt, तो I की जगह पे ये लिख लिया हमने, ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली, और फिर हमने इसको जो है डेरिवेट कर दिया, और कॉस को माइनस ओमेगा LIm साइन हो गया ये, और साइन पता है कि माइनस साइन कैन बी रिप्लेस विथ कॉस ऑफ प्लस 90, तो यहाँ पे प्लस 90 कर दिया, और हमने इसको इन टर्म्स ऑफ जब लिखा फेजर की टर्म्स में, तो दिस Im ये हमने फेजर की इंफॉर्मेशन में लिख दी, और फेजर को हमने शो कर दिया कैपिटल I A से। तो ये जो था 90, ये 90 कैन बी जस्ट ब्रॉट आउट एज J आउटसाइड। अच्छा, इस वाले कॉन्सेप्ट को जो उस वीडियो में से है और अलेक्जेंडर सादिक में से आपको मैंने थोड़ा सा बताया है, वो क्या है कि द फेजर इन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैन बी रिटन एज दिस ओमेगा LIm रिमेन सेम, लेकिन दिस इज जस्ट रिप्लेस्ड विथ EJ phi प्लस 90। द फेज जो होता है ना वो ऊपर आ गया E, और इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया, और विद दीज थिंग्स। तो देखें, अब थोड़ा सा जहन तो लगाना पड़ेगा, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जहन में बहुत क्लियर नहीं है, और नहीं होते हैं, थोड़े सा अरसे बाद फेड आउट हो जाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड रिफ्रेशर फॉर यू। सो दिस J5 प्लस 90 कैन बी रिटन एज J5 एक्सपोनेंशियल J5 एंड एक्सपोनेंशियल J90। ये दोनों अगर प्लस हो रहे हो, किसी भी चीज़ को अगर पावर में ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर ब्रैकेट में 2 प्लस 2 या 2 प्लस 3, तो दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 प्लस 5,
2 plus 3 is 5. If you are just raising something 2 to a power of 2 plus 3, that is 5. So 2 raised to the power 5 is what? 32. So in the same way, you can just write 2 raised to the power 2 and 2 raised to the power 3. So multiply. So 2 raised to the power 2 is 4 and 2 raised to the power 3 is 8 and 4 multiplied by 8 is 32. तो हम जमा कर सकते हैं ये. दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. मैं आपको 8वीं क्लास की मैथ्स बता रहा हूँ. डेफिनेटली आप जो है ऑलमोस्ट लाइक इंजीनियर्स हैं और आप फाइनल सेमेस्टर्स में हैं या 7th सेमेस्टर में हैं. नेक्स्ट सेमेस्टर आप फाइनल सेमेस्टर में आ ही चुके हैं तकरीबन. तो सॉरी फॉर जस्ट टेकिंग यू सो लाइट. अच्छा, तो ये जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एंड यहाँ से मैंने ये आपको यहाँ बताया कि ई जे थीटा यूलर्स आइडेंटिटी से कॉस 90 प्लस जे साइन 90 से ये तो 0 हो जाएगा. जे 90 साइन 90 ये जे इंटू 1 हो जाएगा जे साइन 90 की वजह से. तो ये जे हो जाएगा सिंपल जे. तो दिस थिंग कैन बी जस्ट रिटन एज सिंपल जे. तो ये बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पर जे आ गया और बाकी सारी चीज़ें फेजर की डोमेन में लिख दी हमने. तो ये बातें पता चल गई और ये हमने फेजर में रिलेशनशिप दिखा दी इंडक्टर की. अब आगे चलते हैं. अब जो ग्राउंड वर्क बनाना है ना मुझे, वो ये है कि इंडक्टेंस ऑफ इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स. तो द इम्पिडेंस ऑफ a capacitor, this is capacitor XC, is given by V upon I, और V upon I is just like XC upon J. तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से जो मैं ग्राउंड वर्क बना के आया हूँ कि XC is what? XC is omega C. XC is 1 upon omega C and omega is what? 2 pi f C. So in that way, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके. In that way, this XC को अगर J को ऊपर लेके जाएं तो माइनस J बन जाता है. ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि आपको पता है ऑलरेडी कि J को अगर हम ऊपर लेके जाएं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो माइनस J बन जाता है. अगर नहीं बता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप क्या करें. यहाँ पे भी एक J बना दें, एक यहाँ पे भी J लिख दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. तो ऊपर तो J XC हो जाएगा और ये J जब J से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? J स्क्वायर एंड J स्क्वायर इज -1. J होता है माइनस अंडर रूट -1. तो जब आप अंडर रूट तो -1 को स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, अंदर से -1 निकल आएगा. तो ये -1 आ जाएगा यहाँ पे. तो -1 इन डिनोमिनेटर जस्ट मीन्स माइनस साइन हियर, ये. और यहाँ पे आपने जो J मल्टीप्लाई किया था वो यहाँ पे अपीयर हो गया. अगेन सॉरी फॉर एक्सप्लेनिंग वेरी ट्रिवियल थिंग्स फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इवन देन आई जस्ट फील इट नेसेसरी सो दैट एवरीबडी इज एट द सेम लेवल. तो ये माइनस जे XC है, वेयर XC इज व्हाट? 1 upon omega C. I just show you this XC, how we have just found out that this XC is 1 upon omega C. ये मैं ऊपर से जो ग्राउंड वर्क करके आया हूँ आपके लिए कि V upon I is the resistance and that is 1 upon J, the resistance of a pure capacitor. If there is no resistor involved, so that will be just V upon I, the resistance. अगर रेजिस्टेंस की बात करें ना तो दैट इज जस्ट अ रेजिस्टर R, सिंपल प्योर रेजिस्टर. लेकिन क्या होता है कि इंडक्टेंस की टर्म में हम बात करते हैं ना द कॉम्बिनेशन, तो हम बात करते हैं इम्पिडेंस की. तो दिस V upon I इज इम्पिडेंस हियर, द यूनिट इज अगेन सेम, दैट इज ओम्स. तो ये 1 upon j omega C था, मैंने यही लिखा है 1 upon j omega C, 1 upon j omega C. तो ये 1 upon j omega C हो गया, वेयर XC इज 1 upon omega C. तो यहाँ पे 1 upon omega C आ गया XC की वजह से. तो J को ऊपर ले गए तो दिस बिकम्स J XC. सो एब्जॉर्ब दिस थिंग सो दैट यू नो. अच्छा, इसी तरीके से इंडक्टर के अंदर क्या हुआ कि ये वाली जो रिलेशनशिप आती है वो आती है J XL और XL इज व्हाट? XL इज ओमेगा L. अब मैं आपको इंडक्टर वाली जगह पे बता देता हूँ. ये देखें J और ये I को यहाँ ले जाएंगे तो तभी ये ओम्स में बनेगा ना, V upon I, दैट इज ओम्स, द ओम्स लॉ, J ओमेगा L. तो ओमेगा L को यहाँ पे हमने कह दिया XL, तो यहाँ पे ओमेगा XL इज ओमेगा L. सो इसका मतलब है कि द इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटेंस इज गिवन बाय J minus J XC एंड द इम्पिडेंस ऑफ इंडक्टर इज गिवन बाय J XL. अच्छा, अब हमने सारा ग्राउंड वर्क कर लिया एंड वी आर जस्ट रेडी फॉर इट. अच्छा, अब अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ऑफ अ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, तो रेजिस्टर तो एज इट इज RS मैंने क्यों लिखा है? द S इज फॉर द सीरीज.
because we have just to take this series combination to parallel combination and we have to find the equivalent. So that's why this resistance, which is just being used as a resistor in a series, is given a name of S, and in the same way that's CS. So ये दोनों सीरीज और RS दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. So that means that सीरीज कनेक्शन में दोनों का एडिशन हो जाता है. The resistance in ohms, the impedance of the capacitor in ohms, simply add it together. So that becomes the impedance of the series combination, ZS, from here to here. Okay, but ZC, we have just written here that ZC is given by minus JXC. So ये minus JXC was just a simple term where the capacitance value is C, but because we have just taken as the impedance of the GCS, so I have just mentioned this as XS. Nothing changed, just the subscript, just to show that this is capacitance value in series. अच्छा अच्छा, अब इस लेक्चर को आप लाइट ना लें. This lecture is going to be the part of your final exam where I will be just making a question out of it. And if you are not good in it and you have not grasped it completely, so definitely in limited time you will not be able to perform as per the requirement. तो ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है and you have to just apply yourself and think on it कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं. And these are the so basic things that if you know these things at this moment of time, this is definitely going to benefit you later on in your all of subsequent studies. So यहाँ तक हम पहुँचने के बाद जो है ना, अब हम किताब पे स्विच कर जाएंगे बिकॉज ये तो एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया हुआ है और हम किताब पे स्विच कर जाएंगे बिकॉज यहाँ से जो है किताब स्टार्ट हो रही है. किताब का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और मैंने यहाँ से इसको बिल्डअप किया है. So going back to the chapter, the pages scanned. So this was RS minus JXS for this circuit. PS and RS. तो ये माइनस कहाँ से आया मैंने आपको पहले बता दिया है. आप इसको अभी ज़रा लेक्चर को रिवर्स करके देख लें. तो ये मैंने आपको यहाँ से बताया है, ये मैंने आपको बताया माइनस JX RS माइनस JXS. तो यही है यहाँ पर भी यही है वाला ये चीज़. इसके बाद से जो हैंडलिंग है वो किताब में बड़ी आसान है. then this is very simple thing. इन्होंने कहा कि अगर इसको हमने रिप्लेस करना है with this, तो हमने कह दिया कि भाई इसकी जो एविडेंस होगी, एडमिटेंस, वो बराबर होगी कि भाई इसकी एडमिटेंस को ऐड करो और इसकी एडमिटेंस को ऐड करो. तो इसकी एडमिटेंस यहाँ पे एक्सपी इस्तेमाल किया है कि ये कैपेसिटर दूसरा है, सीपी है, तो इसका एक्सपी होगा. इसकी रिएक्टेंस वही वाली होगी, माइनस जेएक्सी होगी, जेएक्सी फॉर सी होगी, जेएक्सीपी होगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्सपी लिख दिया इसको. और पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में ये जो जे ऊपर आ गया है इसको आप देख लें ज़रा, क्योंकि हमने जब इसको ऑलरेडी जो है ऊपर से 1/XP कर दिया है तो ये जे भी ऊपर चला, नीचे था जे पहले, तो ये ऊपर ऑटोमेटिक चला गया लेकिन पॉजिटिव रहा. तो यू हैव टू जस्ट थिंक ऑन इट. मैंने थोड़ा सा पेज पे लिखा था लेकिन वो मैंने स्कैन नहीं किया, अगर मैं स्कैन कर लेता तो अच्छा था. So maybe if I just felt that this is requirement, so I will just scan it and add it with this page at the last, so that don't have any problem with this. So this is given as admittance, और admittance बराबर होती है 1/resistance के, और admittance is just like opposite of impedance. तो ये इन्होंने डिफाइन ही YP को एडमिटेंस किया है, इम्पीडेंस के तौर पे डिफाइन नहीं किया YP इज. अच्छा, अब ये जो चीज़ है 1/RP इज गिवन बाय कंडक्टेंस, RP की अपोजिट कंडक्टेंस होती है, और रिएक्टेंस ये जो है 1/XP, नो, XP इज रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो इसका जो अपोजिट होता है दैट इज कॉल्ड ससेप्टेंस. तो ये यहाँ पर आ गया ससेप्टेंस, द बी इज ससेप्टेंस. अच्छा, अब क्या करना है कि बिकॉज दिस इज एडमिटेंस और this is the impedance,
तो एडमिटेंस को आपने इक्वेट करना है फॉर विद इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस इज द अपोजिट ऑफ एडमिटेंस इज अपोजिट ऑफ द इम्पिडेंस, तो इसको यहाँ पे वाईपी एडमिटेंस हमने डिफाइन किया था, 1/IP हो गया। सो इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब यह है कि द इम्पिडेंस एंड दिस पॉइंट, 2 पॉइंट्स शुड बी इक्वल टू दीज 2 पॉइंट्स पैरेलल में। सही है। तो इसका मतलब यह है कि दिस जेड एस इज इक्वल टू दिस जे एक्स, आर एस जे एक्स यहाँ पे शुड बी इक्वल टू दिस 1/YP कर दिया यहाँ पे, तो इसको भी तो 1/GP प्लस जे बीपी करना पड़ेगा, तो इसको 1 कर दिया, ये इसके बराबर है, हो गया। तो यहां से हम आगे चले और इसको यहाँ पे ले गए और इसको नीचे ले गया, यहाँ पे ले आए। अब हमें ये पैरामीटर्स मालूम करने हैं। अगर हमें यहाँ पे ये चीज़ें मालूम चल जाती हैं, जीपी और बीपी, तो इसका मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ द सीरीज वैल्यूज वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द पैरेलल, इन पैरेलल द वैल्यूज फॉर द पैरेलल। तो आगे पेज पे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये जो जीपी था प्लस जे बीपी, इसको इक्वेट कर दिया है उसी से, लेकिन 1/J 1/R S माइनस जे एक्सेस से यहाँ पर, लेकिन एक चीज से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसी चीज से इसको डिवाइड भी कर दिया, सो इट मेक्स नो डिफरेंस ये नीचे वाली चीज से। फॉर सिंप्लीफिकेशन ये अक्सर किया जाता है, एंड दिस इज अ वेरी फेमस टेक्निक टू फाइंड आउट द इमेजिनरी पार्ट एंड द रियल पार्ट। तो क्या करें, this will become RS square and this will become the whole thing square, but whole thing square में j square is -1 and minus is already coming in the formula, क्योंकि a square plus b square से किया है ना हमने कि this is a minus b and this is a plus b, तो a square minus b square, तो माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में था, तो ये माइनस जे एक और आ गया, माइनस जे स्क्वायर दैट बिकम्स माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया यहाँ पर। सही है, इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा, बिकॉज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट में कि मैं आपको एग्जाम में हो सकता है कि इस तरह की इसकी डेरिवेशन दे दूँ ऑलरेडी, ऑल्दो दिस डेरिवेशन इज देयर इन द बुक एंड द एग्जाम इज ऑनलाइन, तो डेफिनेटली ये बुक की डेरिवेशन तो मैं आपको नहीं दूंगा, तो फिर मैं क्या करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये इस तरीके से इसको समझने के लिए मैंने आपको बीच में इसलिए बताया कि ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा फोकस कर लें, ज़रा सीधे होके बैठ जाएं, और टेक लगा के जो है ना, वीडियोस देखने से कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, सो यू मस्ट बी वेरी अटेंटिव एंड जस्ट बी ऑन योर टोज, मतलब ये कि टोज का मतलब ये कि थोड़ा सा एक्टिव। अच्छा, तो ये ऊपर चीज़ आ गई। अब अगर आप इसको इक्वेट करना चाहते हैं फॉर द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट ये बन जाएगा दिस अपॉन द होल थिंग, और इमेजिनरी पार्ट जे जे वाला पार्ट, दोनों आपस में जे जे तो कट जाएगा, बट बीपी विल बिकम इक्वल टू दिस पार्ट डिवाइड बाय दिस होल थिंग। तो ये एक्सेस अपॉन, ये इसको दोनों को सेपरेट आउट करके लिख लें, न्यूमरेटर में ये जो चीज़ है इसके नीचे भी डिनोमिनेटर लिख लें और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर लिख लें, पूरा का पूरा ये वाला, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी कि जीपी इज इक्वल टू दिस थिंग द रियल पार्ट और बीपी इज इक्वल टू दिस थिंग द इमेजिनरी पार्ट, तो ये वाली बात आ गई, आर एस अपॉन आर एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और बीपी इज इक्वल टू, बीपी कहाँ गया, बीपी नहीं था, ये बीपी यहाँ पर है, तो ये जीपी को पलट दिया, इस जीपी को पलट दिया, इन्वर्ट कर दिया, तो आरएस नीचे चला गया और ये सारी चीजें ऊपर चली गई, तो इसका मतलब आरबी पता लग गया। इसी तरीके से बीपी के साथ किया और ये इसका ये वाला पार्ट ले लिया, एक्सेस अपॉन आर एस स्क्वायर, ये वाला ये ले लिया, और एक्सपी मालूम करने के लिए, क्योंकि ये बीपी था, ससेप्टेंस था, हमें रिएक्टेंस मालूम करनी थी, बीपी का अपोजिट ससेप्टेंस होता है, तो इसको यहाँ से उलट दिया, एक्सेस को नीचे कर दिया और ये वाले डिनोमिनेटर को ऊपर कर दिया, तो ये हमारे पास पता चल गया। अच्छा, अब ये बात तो ये होगी ना कि आपने पैरेलल पैरामीटर्स मालूम कर लिए, अगर आपके पास ये चीजें मौजूद थी तो आपने ये कर ली, लेकिन अगर लेट से कि ये चीजें मौजूद हो और ये करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो ये तो इन वाले एक्सप्रेशन से तो आप इसको नहीं निकाल सकते, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, इधर से और इधर से, इन टर्म्स ऑफ इफ यू जस्ट फाइंड आउट एक्सेस इन टर्म्स ऑफ आरपी एंड एक्सपी, तो इन दोनों को ऐड करके और कुछ मैनिपुलेशन करके किया जा सकता है, और जो रिजल्ट आएगा डेफिनेटली वो सही होगा।
बट आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट। मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करें। आप इसको यहाँ से स्टार्ट करें कि इसको यहाँ ले जाएं, बल्कि इसी पॉइंट से यहाँ पे लिया हुआ ही है, इस पॉइंट से स्टार्ट करें, इस स्टेप को एक्सक्लूड करें, खत्म करें, इस स्टेप को काटें और नेक्स्ट स्टेप में चले जाएं और इसको लेके चले आगे बिल्कुल इसी तरीके से, यहाँ से ये वाले स्टेप लेके ऊपर नीचे से इसी चीज को इसी चीज को इसी चीज को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इस तरीके से ये जो सारा रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आर एस और एक्स एस इन टर्म्स ऑफ द पैरेलल पैरामीटर्स, और इस तरीके से यहाँ पे डेरिवेशन आ जाएगी। वो डेरिवेशन मैंने करके देखी हुई है और प्रूव की हुई है, और फिर जो है वो मैंने अपने हाथ में देने की बजाय, हाथ से लिखे हुए देने की बजाय, मैंने आपको यहाँ पे एंड द लास्ट पेज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज जस्ट द मेंशन ऑफ दैट थिंग। तो सीरीज टू पैरेलल कन्वर्जन ये आ गई, ये वाला जो ऊपर वाला फॉर्मूला अभी हमने किया था सीरीज टू पैरेलल, लेकिन पैरेलल टू सीरीज कन्वर्जन ये वाली आ गई। ठीक है, आई होप के बात समझ में आ गई होगी। इससे और यहाँ से लेकर यहाँ पे बैक एंड फोर्थ कन्वर्जन के सारे फॉर्मुलेज आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, और मैंने प्रूव का तरीका भी बता दिया है कि कहाँ से स्टार्ट करें। बुक में, बुक शुरू में है, ये वाला पेज लास्ट में था, तो आप कहाँ से स्टार्ट करें, इसको यहाँ से स्टार्ट करें, इस वाले टॉपिक, इस वाले पॉइंट, इस वाले से प्रूव करना शुरू करें, और यहीं से जो है इससे ऊपर से मल्टीप्लाई भी कर दें, इसी से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें यहाँ पर, जैसे यहाँ पे किया हुआ है ये वाला। तो उससे आपके जो जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, फ्रॉम पैरेलल टू सीरीज आ जाएगा। अभी क्या है कि सीरीज होंगे तो पैरेलल के पैरामीटर्स आ जाएंगे। अभी जो हम आपके पास पैरेलल जो पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है आरपी और ये एक्सपी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई हमारी कि ये जो है पैरेलल से सीरीज में कन्वर्जन हो सकती है इस तरीके से। ये इंडक्टर की जो सारी डिस्कशन है ये भी सारी की सारी सेम है, गो थ्रू इट, और प्लीज बी श्योर दैट यू आर फुल कंट्रोल ऑफ दीज थिंग्स इंडक्टर में भी। अच्छा, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ एंड देन आई विल जस्ट कम टू दिस क्यू फैक्टर एंड द डी फैक्टर। और ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी मैं आपको करा दूंगा किताब में से ही, और ये वाला न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया था लेकिन मैंने तस्वीर नहीं ली उसकी, ले लेता तो अच्छा था, लेकिन दिस इज जस्ट काइंड ऑफ दिस सेम न्यूमेरिकल हेयर जो कि सॉल्व एग्जाम्पल में है। तो मैं सॉल्व एग्जाम्पल समझा दूंगा तो फिर ये वाले भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी सी वैल्यूज ही चेंज है। मैंने सॉल्व किया, आंसर लेकर आया हूँ मैं इसका, लेकिन आपको पता है कि तस्वीर नहीं लेनी तो फिर मसला हो गया। अच्छा, यहाँ पे किताब खत्म हो गई, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। ये मेरी स्कैनिंग थी जो मैंने आपको गो थ्रू की है, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये मैंने आपको शुरू में बताया था ये सारा कुछ, और अब ये वाला क्वेश्चन मैंने एक बनाया अपनी तरफ से, फाइंड द इक्विवेलेंट पैरेलल सर्किट। अगर आपके पास ये वाला सर्किट मौजूद है where the capacitor is 10 microfarad and the series resistance is 5 ohms, तो find out a circuit, यहाँ पे पैरेलल में बनाना चाहिए था मुझे, with CP and RP, with CP and RP in parallel। तो मुझे CP और RP मालूम करना है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, so that the terminal characteristics will remain just same as the series combination। तो उसमें CP चेंज हो जाएगा फ्रॉम दिस 10 माइक्रोफेराड, और RP भी चेंज हो जाएगा फ्रॉम दिस 5 माइक्रोफेराड। अच्छा, ओ 5 मोम्स, 10 माइक्रोफेराड एंड 5 ओम्स। तो अब लेके चलते हैं हम, हमें पता है कि व्हाट इज दिस आर एस इज 5 ओम्स, टी एस इज 10 माइक्रोफेराड, तो एक्सेस मालूम कर लिया 1/2 पाई एफ सी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलो हर्ट्ज। अच्छा, एक और बात बताऊं कि इफ यू आर फाइंडिंग इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम सीरीज टू पैरेलल और द वाइस वर्सा, पैरेलल टू सीरीज, तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा ये जनरल सर्किट नहीं होगा, इट विल बी इक्विवेलेंट फॉर ओनली वन फ्रीक्वेंसी because the capacitance is involved, so only it will be equivalent to the parallel combination only at that frequency where you have just found out the equivalent circuit। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे the whole thing will change and then you will have to find out all it again, all these things again। so the frequency is already involved in this finding out the xc। so impedance of the capacitor just depends on frequency 1/2 pi f, 1/2 pi f xc, x मालूम करा सीरीज में, तो हमारे पास आ गया सीरीज में एक्सेस मालूम चल गया हमें, और यही फॉर्मूले में इस्तेमाल हो रहा है। तो आरपी मालूम करने के लिए
हमने कहा कि RS और ये वाला फार्मूला वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया RP इज 55.6, डायरेक्ट सिंपल RP आ गया है। लेकिन यहाँ पे जब हम फार्मूले में पुट कर रहे हैं, ये फार्मूला कौन सा है, वो जो ऊपर अभी हम करके आए, XP का फार्मूला दिखा देता हूँ आपको मैं, ये वाला फार्मूला, ये सॉरी नहीं, ये तो इंडक्टर का था ना, ये वाला फार्मूला XP का फार्मूला, ये वाला मैं फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऊपर से नीचे एक्सेस है, नीचे एक्सेस है, ऊपर तो वही है, स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर ये स्क्वायर स्क्वायर है, ये नीचे एक्सेस है, देखिएगा इसको। अच्छा, तो कमिंग बैक टू दैट सेम पॉइंट, तो मालूम करने के लिए एक्स 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 भी मालूम करना था, तो ये नीचे एक्सेस है, ऊपर एक्सेस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वही चीज है। वैल्यूज पुट की, क्या पुट किया, रेजिस्टेंस पुट किया आर एस की जगह पे, और ये एक्सेस जो मालूम किया था वो पुट किया 15.92, नीचे एक्स एक्स है, इसको ऊपर से स्क्वायर किया, नीचे स्क्वायर नहीं है, तो ये हमें पता लग गया कि एक्सपी इज गोइंग टू बी 17.49। तो हम एक्सपी मालूम हो तो हम मालूम कर सकते हैं सीपी विथ 1/2 पाई एफ एक्सपी इम्पीडेंस, तो सीपी मालूम चल जाएगा। एक्सपी मालूम करना हो तो यहाँ पे सीपी आ जाता है, सीपी मालूम करना है तो यहाँ पे एक्सपी आ जाएगा। हमारे पास एक्सपी मौजूद है तो सीपी मालूम कर सकते हैं। वैल्यूज पता लग गई कि अगर हमारे पास पैरेलल में इसको लगाना होगा तो वी विल बी नीडिंग अ 55 ohms रेजिस्टेंस एंड 9.09 माइक्रोफैराड ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा, अब कन्वर्टिंग बैक, आई जस्ट वांटेड टू जस्ट मेक श्योर कि द ओरिजिनल वैल्यूज आर कमिंग बैक और नॉट। तो ये वाला कन्वर्टिंग बैक, इन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए मैंने इनको दोबारा से इन फॉर्मूलेस के अंदर पुट कर दिया, जिसके अंदर से मैंने ये वाले में से इसमें से इधर ले गया, फ्रॉम पैरेलल टू सीरीज, तो फ्रॉम पैरेलल टू सीरीज कन्वर्जन, तो यहाँ पे इस्तेमाल किया ये। ऊपर ये इसका फॉर्म देखेंगे कैसी, आर पी एक्स एक्स पी स्क्वायर है, तो ये वाली मैंने फॉर्म इस्तेमाल की यहाँ पे, आर पी एक्स स्क्वायर वैल्यूज पुट की, 4.99 आ गई। ओरिजिनल क्या थी, 5 ओम्स। एक्सेस मालूम किया, आ गया 15.92, लेकिन दिस इज जस्ट एक्सेस, एक्सेस मालूम किया था हमने यहाँ पे, ये रहा 15.92। तो 15.92 से जब हमने मालूम कर लिया तो इससे CS भी मालूम कर लिया, तो CS आ गया 9.997 माइक्रोफैराड, which was the original capacitance. So that's how we are just done. In that way we are just done, that we have just converted both the ways. अच्छा, अब क्या रह गया, ये हो गया सारा कुछ, ये मैं कवर अप कर चुका हूँ, किताब में से डेरिवेशन समझा चुका हूँ। हाँ, अभी एक चीज बाकी है ना, Q factor of an inductor. What is Q factor? The quality factor of inductor. इट्स अ पैरामीटर जिसके लिए हमने ये सारी डिस्कशन की है कि इंडक्टर को जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसको डिफाइन किया हमने बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स सीरीज वैल्यूज। तो तस्वीर नहीं बनी हुई, लेकिन मैंने आपको ये डिफाइन करना है कि यहाँ से हमने क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किया है। क्वालिटी फैक्टर का मतलब ये है कि इट शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस आइडियली, और LS होना चाहिए। तो ये जब जीरो आएगा यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर में, यहाँ पे, तो दिस क्वालिटी फैक्टर इज इनफाइनाइट, तो दैट मींस द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ इंडक्टर शुड बी इनफाइनाइट, आइडियल क्वालिटी फैक्टर। लेकिन कोई भी नहीं होगा, हमेशा इंडक्टर विल बी मेड अप ऑफ अ कॉइल, a wire, and wire will cannot have a zero resistance, it will have a very less resistance। लेकिन अगर कोई छोटा इंडक्टर है तो वो छोटा इंडक्टर है तो वो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और बड़ा इंडक्टर है तो उसका वायर जो होगा वो मोटा बना हुआ होगा, तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो द क्वालिटी फैक्टर ऑफ a small inductor is higher as compared to the quality factor of the big inductor। अच्छा, तो हम इसको कंपेयर करते हैं द रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस विद द रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है ओमेगा एल एस, तो डिवाइड कर देते हैं सीरीज में, तो ये बात हो गई। अच्छा, अब कैपेसिटर को हम जो डिफाइन करते हैं ना, वो पैरेलल में डिफाइन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेसिपेशन फैक्टर, द डी फैक्टर ऑफ द कैपेसिटर। तो द डी फैक्टर ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ पैरेलल पैरामीटर्स। पैरेलल पैरामीटर्स का मतलब है कि हम ये वाले डायग्राम इस्तेमाल करते हैं और एक्सपी और उस टर्म्स में आरपी की टर्म्स में बात करते हैं। द क्वालिटी फैक्टर, द डेसिपेशन फैक्टर, ये डिफाइंड है
the qualitative decimation factor is just defined as XP upon RP. So XP is 1 upon CP, and then this RP. तो क्वालिटी फैक्टर को हम अगर डिफाइन करना चाहें इन टर्म्स ऑफ सीरीज पैरामीटर्स तो हम कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। और अगर हम क्यू फैक्टर को भी अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, ओरिजिनली तो हमने इसको सीरीज वाला पैरामीटर किया था, लेकिन इफ यू जस्ट वांट टू डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ पैरेलल तो वो भी कर सकते हैं। So these PDF snapshots are just available for you, और ये न्यूमेरिकल आप 9.1 कर लीजिएगा। और वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक कैपेसिटर है, circuit behaves as an unknown circuit behaves as 0.005 microfarad capacitor in series with 8 kilo ohms resistor when measured at a frequency of 1 kilohertz. The internal resistance terminal resistance is measured by ohmmeter as 134. दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और वो बिहेव कर रहे हैं एज ए सीरीज, और उसकी टर्मिनल रेजिस्टेंस आ रही है 134. डिटरमाइन द एक्चुअल सर्किट कंपोनेंट्स एंड द मेथड ऑफ कनेक्शन। तो इसमें मेथड ऑफ कनेक्शन क्या होगा, किस तरीके से एक्चुअल कनेक्टेड है। आप इसका रिस्पॉन्स ऐसा रहा है कि ये सीरीज में ये दो रेजिस्टेंस लगी हुई हो, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हो, और जो मीटर से जो रेजिस्टेंस मेजर की है वो आ रही है 134। तो एक्चुअल कनेक्शन बताएं कि वो क्या है। तो हमने कहा कि ये सीरीज है, तो इसका मतलब है कि ऐसे बिहेव कर रही है, तो सीरीज के एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस निकाल ली, और रेजिस्टेंस तो 8 किलो ओम्स है ही है, उन्होंने बता दिया। तो हमने जब इसका आरपी मालूम किया तो आया 134, और एक्सपी मालूम किया तो आया 134। तो हमने कहा कि भाई जब आरपी 134 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 134 पैरेलल में ही कनेक्टेड है। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होता कैपेसिटर के साथ सीरीज में, तो ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू आती, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा आती। तो 134 ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमने एक्सपी मालूम कर लिया, और उसके अंदर से हमने सीबी मालूम कर लिया। तो दैट मीन्स द एक्चुअल कनेक्शन इज this capacitance connected is with parallel with 134 resistance, क्योंकि रेजिस्टेंस जो आ गई है वो यहाँ से 134 आ गई है, और रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आ गई है 0.005, जबकि ओरिजिनल जो सीरीज में क्या दी हुई थी, सीरीज में ये 0.05 का कैपेसिटर था और सीरीज में 8 किलो ओम था। लेकिन अब जो है सीरीज में कितनी आ गई है, पैरेलल में 134, और कैपेसिटर की वैल्यू मिल रही है सीपी। ये बस इस तरीके से रही है। इट कैन जस्ट हैव अ वेरी वेरी लिटिल इफेक्ट, बट ये क्लोज आएगी इस तरीके से। अच्छा, वो क्लोज आएगी, वो कैसे आएगी, वो देखें, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला कि अगर ऐसे करें तो ये जो एक्सपी आती है इज ऑलमोस्ट लाइक एक्सेस, और ये जो आती है एक्सपी, ये बिल्कुल एक्सेस के बराबर ही आती है। तो ये बराबर आती है, जब एक्सपी एक्सेस के बराबर आती है तो कैपेसिटर निकालेंगे तो भी बराबर आएगी, ऑलमोस्ट लाइक। ये पॉइंट है, ये यहाँ पे इन्होंने अप्रोक्सीमेट, ये सिंबल अप्रोक्सीमेट का होता है, तो इन्होंने अप्रोक्सीमेट में बता दें कि एक्सपी इज जस्ट लाइक इक्वल टू एक्सेस। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की रिएक्टेंस पैरेलल में दोनों में सेम आती है। तो जब रिएक्टेंस सेम आ रही है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी तो सेम आएगी ना, सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। So anyway, I hope that this was just helpful, and the next class we will just continue on with these concepts. Just take a review from me here. First of all, we just defined what is the reactance of the impedance and the reactances. I just repeat that impedance and admittance are two words, opposite words. इसी तरीके से reactance and the susceptance are two opposite words, and then resistance and conductance are two things. कंडक्टेंस का अपोजिट होता है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस का अपोजिट होता है ससेप्टेंस, और इम्पीडेंस का अपोजिट होता है एडमिटेंस। सही, इम्पीडेंस का ये इम्पीडेंस, ये एडमिटेंस। इसी तरीके से ये जो है
this is the opposite of this XP, that is reactance, is given by susceptance. इसी तरीके से रेजिस्टेंस है, उसका जो है अपोजिट होता है कंडक्टेंस, ये तो नॉर्मल है, ये आपको पता ही होगा। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर आया, और ये जो वाला यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ से, इसको हमने बिल्डअप किया पूरा यहाँ से, इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमने फेजर रिलेशनशिप से बिल्डअप किया, और यहाँ पर हम लेकर आए कि v अपॉन आई इज बेसिकली इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा सी, और 1 अपॉन ओमेगा सी को हमने एक्स लिख दिया है। तो ये हो गया, ये इसको बिल्डअप किया और फिर आगे लेके चले। डेरिवेशंस जो है यहाँ पर जो है ये वाली आसान थी, तो ये हमने किताब में से ले ली, इसकी स्कैनिंग मैंने नहीं की, अदरवाइज दिस जस्ट कुड हैव बीन डन वेरी इजीली। लेकिन यहाँ से अगर स्टेप लेके चलें, यहाँ से इस पॉइंट से, ये इंडक्टर का है, इंडक्टर का आपको मैंने खुद करने का बोल दिया है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट से लेकर चलें तो इसके बाद जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैंडलिंग है। बट इवन देन इफ यू आर जस्ट हैविंग एनी डिफिकल्टी इन दिस अंडरस्टैंडिंग, और मैंने सवाल आपको बता दिया, एक न्यूमेरिकल भी करा दिया, और ये भी मैंने बता दिया कि इफ आई जस्ट टेल यू टू जस्ट ड्राइव समथिंग यूजिंग दीज थिंग्स, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, चलो सिंपल, कि अगर आपकी जो अभी तक हमने जो डेरिवेशन की है ना, वो ये है सीरीज टू पैरेलल, लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ नहीं पैरेलल टू सीरीज कन्वर्जन करके दिखाएं, तो यू विल एक्चुअली हैव टू डेरिवेट दैट थिंग। तो दी अगर टाइम होता तो ये असाइनमेंट बन सकता था, बहुत छोटा सा असाइनमेंट है, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है तो अब ये फाइनल का सवाल बन सकता है। आई एम नॉट जस्ट नॉट सेइंग बिकॉज मैंने पेपर नहीं बनाया हुआ, बट मैं इसको कुछ तोड़ मोड़ के कोई चीज़ आपके सामने लेके आ सकता हूँ कि नाउ यू जस्ट डू इट। So you will have a limited time, and then you will not have much time to just explore, और ये आपको इंटरनेट पे इस तरीके से डायरेक्ट मिलेगी भी नहीं डेरिवेशन, तो आपको अपने हाथ से कर लें तो अच्छी बात है। इससे आपको ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप एग्जाम में जो सवाल आएगा उसको समझ सकेंगे, बिकॉज जब वो चीज़ें बंदा कर लेता है ना, उस स्टेज से गुजर जाता है, तो उसको फिर आगे की चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, और ये बात तो ऐसी, ये बात पर अपना ध्यान तो हर कोई रखता है, बल्कि अपने करीब वालों का ध्यान रखिएगा। अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा खिदमत करें। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सिंसियर लोग हैं वो वालिदैन होते हैं, वो आपसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहते, वरना दुनिया के अंदर कोई ऐसी आपके साथ रिलेशनशिप नहीं है जो आपको रिटर्न में कुछ ना चाहती हो। सही है, औलाद भी जो है ना गिव एंड टेक पे चलती है, लेकिन जो वालिदैन है ना वो गिव एंड टेक पे नहीं चलते, वो सिर्फ गिव के पीछे पे चलते हैं। गिव एंड टेक नहीं, गिव एंड गिव, राइट। सो नमाजों की बहुत ज़्यादा पाबंदी कीजिएगा, आखिरकार बनना है, मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना है, तो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हमें भेजा ही है इसी काम के लिए कि हम आखिरत की तैयारी करके आएँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अक्लमंद शख्स हो जो मैंने इस कलमाने की तैयारी करे। चलें, अस्सलाम वालेकुम।